सुप्रभात। New morning, new mercy, new grace. नई सुबह, नई दया, नया अनुग्रह। I have a word to share with you. मेरे पास वचन है आपके साथ बांटने के लिए आज सुबह। Because as I was just preparing this word, I just felt that so many people in the church are hopeless and discouraged in these times. क्योंकि जब मैं आज वचन तैयार कर रहा था तो मुझे ये वचन आया कि बहुत सारे लोग हैं कलीसिया में ऐसे जो निराश हैं और हताश हैं इन समय के बीच में। And you know, the enemy has been playing this trick from ages. और आप जानते हैं दुश्मन ये तरीका, ये नुस्खा विश्वासियों पे बहुत समय से चलाता आ रहा है। And Apostle Paul says that we are not ignorant of the wiles of the enemy. और प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि हम अनजान नहीं हैं दुश्मन के जो तरीके हैं हमें हमारे खिलाफ। We know that we are living in difficult times. हम जानते हैं कि हम कठिन समय में जी रहे हैं। We know that there are people whose businesses, jobs have been affected. These are tough times, no doubt. हम जानते हैं ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके व्यवसाय, नौकरियां, उन पर फर्क पड़ा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये कठिन समय है। But the church has started to believe that the Lord has abandoned us. लेकिन कलीसिया उस जगह आ गई है जहां पर वो ये विश्वास करती है, कलीसिया के लोग ये मानते हैं कि प्रभु ने उनको छोड़ दिया है। And here today I want to tell you that Jesus Christ is not coming for a hopeless, for a discouraged church. Jesus Christ is coming back for a victorious, blameless and a powerful church. और ये बात जान लिया कि यीशु मसीह एक निराश, हारी हुई या हताश कलीसिया के लिए नहीं, लेकिन एक सामर्थ्य से भरी हुई, महिमा से भरी हुई कलीसिया के लिए आ रहा है। You know, if you hear the news, you will see what all is happening, so much of conspiracy theory, people believing the end of the world has come. अगर आप खबरें देखेंगे, खबरों पे विश्वास करेंगे तो बहुत सारी बातें चल रही हैं और लोग मान रहे हैं कि दुनिया का अंत आ गया है। But I am here to tell you that this is not the end. लेकिन मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि ये अंत नहीं है। Church, did you hear what I said? कलीसिया आपने सुना? This is not the end, because the end is going to be glorious. ये अंत नहीं है कलीसिया, क्योंकि अंत महिमान्वित होगा, महिमा से भरा हुआ होगा। If it's not glorious, it is not the end. अगर ये महिमा से भरा हुआ नहीं है तो ये अंत तो नहीं है। Amen. So today, this morning, I want to take you through some heroes of Bible, and I want you to read about their life and know about their life. इसलिए आज सुबह मैं आपको बाइबल के कुछ ऐसे हीरोज हैं जिनके जीवन से दिखाना चाहता हूं ताकि आप उनके जीवन को देखें और उनके बारे में जानें। And you will understand that there are times in all of our lives, there are times, there are seasons where we feel discouraged, where we feel hopeless. और आप जानेंगे कि हम सबके जीवनों में ऐसी बातें आती हैं, ऐसे समय आते हैं जब हम हताश या निराश फील करते हैं, महसूस करते हैं। But God is a faithful God. लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। Let's talk about Abraham first. I love this. बात करते हैं, मुझे प्यार है। Abraham is 75 years old. His name is Abram. और अब्राहम 75 वर्ष का, उसका नाम अब्राम है। His wife Sarai, they have no children. उसकी पत्नी सराय, और इन दोनों के कोई बच्चे नहीं है, कोई संतान नहीं। He's 75 years old and God makes a covenant with him that I am going to give you a son of promise. और वो 75 वर्ष का है और परमेश्वर उसको एक वाचा देता है कि मैं तुझे वाचा का, वायदे का पुत्र दूंगा। Now this news is unbelievable for Abraham and Sarai. They don't believe it because biologically they cannot become parents. और अभी इस खबर पर विश्वास करना उनके लिए असंभव जैसा है, क्योंकि शारीरिक दशा में वो दोनों इस लायक नहीं कि माँ बाप बन सकें। And 1 year goes by. और एक साल बीत, second year goes by, दूसरा साल, third, तीसरा, fourth, चौथा, fifth, पांचवा, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, and there is no manifestation of the word God gave them. और करते करते 10 साल बीत गए, इस बात को जो वायदा परमेश्वर ने दिया था वो पूरा नहीं हुआ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा जीवन। Can you imagine God gives you a promise and 10 years you don't see anything?
क्या आप कल्पना कर सकते हैं परमेश्वर ने आपको कुछ वादा दिया हो और 10 साल बीत गए जीवन के लेकिन कुछ नहीं दिख रहा उससे? And many times what we do is when God gives us a word for our destiny and we don't see anything come to pass, we take that responsibility on our shoulder that I am going to fulfill it with my own strength. और कई बार जब परमेश्वर हमें कुछ वादा देता है, कुछ वाचा देता है और वो नहीं हो रही होती जीवन में, तो हम उसको अपने ऊपर ले लेते हैं कि परमेश्वर के इस वादे को मैं पूरा करके रहूंगा। And that's what Abraham did. और अब्राहम ने भी ऐसे ही किया। His wife Sarai said, Abraham, I have a maid servant, Hagar. Why don't you go with her? And maybe that's how God will give us kids. और सराय उसके पास आती है अब्राहम के पास और कहती है कि हमारी एक दासी है हेगार, उसके साथ हो सकता है तुम्हारा बच्चा परमेश्वर की ओर से होना हो। When we don't see the promise coming to pass, it's crazy how we negotiate and how we compromise to the word that God gave us. जब हम परमेश्वर के वायदे को पूरा होते हुए जीवन में नहीं देखते तो ये हैरान करने वाली बात है कितनी आसानी से हम लोग समझौता कर लेते हैं उसके वायदे के साथ। Oh, maybe this is what God meant when He said, I'm going to do that. Oh, in these times of pandemic, maybe this is what God wants. वो शायद परमेश्वर ये कहना चाहता होगा या उसने जो कहा उसका शायद ये मतलब होगा या ऐसे समय में शायद परमेश्वर ये चाहता होगा। 86 years, when Abraham is 86 years now, Ishmael is born. 86 वर्ष का जब अब्राहम हो गया तो इश्माइल का जन्म होता है। Abraham disobeyed God. अब्राहम ने परमेश्वर की बात नहीं मानी उसने। Abraham missed the voice of God. अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को चूक दिया। He went to his wife's maidservant. और वो अपनी पत्नी की दासी के साथ चला गया। Same Abraham today whom we call him the father of faith. वही अब्राहम जिसको आज हम विश्वास का पिता कहते हैं। But God did not reject him. लेकिन परमेश्वर ने उसको नहीं ठुकराया। And God has not rejected you. और ना ही परमेश्वर ने आपको ठुकराया। Maybe you have missed, you have stumbled on this way. Maybe you have missed God. Maybe you're not as passionate today as you were when everything was okay. But God has not rejected you, church. हो सकता है आप चूके हों, आपसे उसकी आवाज़ सुनने में गलती हुई हो या आप उतने जलन को ना महसूस करते अपने जीवन में उसके लिए जितना आप शुरुआत में किया करते थे, लेकिन उसके सब के बावजूद परमेश्वर ने आपको अभी तक ठुकराया नहीं है। The promise that God has given you will come to pass not because of you are faithful, but because God is faithful, and what He decrees from heaven, He does it. The Bible says all the promises of God are done with a yes and an amen. और वो वायदे जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं वो इसलिए आपके जीवन में पूरे नहीं होते क्योंकि आप विश्वास योग्य हैं, लेकिन इसलिए पूरे होते हैं क्योंकि वो परमेश्वर जिसने वो वायदे आपको दिए वो विश्वास के योग्य है। बाइबल कहती है उसके सारे वायदे हमारे जीवन में हाँ और आमीन के साथ पूरे होते हैं।